Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and a big hello to everyone. This new channel, which is known as Knowledge Nutshell, was launched on 30th of January with the specific purpose of giving deeply researched information to all the viewers. On a weekly basis, we'll be taking up important topics, and a weekly long video would be preceded by a few small videos to develop the perspective about the subject. This channel actually is going to be very handy for young students, people who are the competitive exam aspirants, but much more than these sections, it's my personal conviction that it will be very useful for housewives, working executives, or people who are very keen to get, capsules or nuggets about important topics but don't find time, or they don't have the access to such information for various reasons. So in today's topic, which is the first in the series, we are going to talk about the Election Commission of India. And you must have seen we have sent a few videos to arouse some interest around the working of the Election Commission of India. There is a frenzy presently in 5 states of India where assembly elections are going to take place in the next few weeks. And therefore, it is very pertinent to understand how such a humongous exercise is taken up by the Election Commission of India on a regular basis and with great amount of success. Let's take the historical perspective first. The Election Commission of India came into existence on 25th of January 1950, a day before our constitution came into existence, the day we celebrate as the Republic Day, which is 26th of January. Now, the first Chief Election Commissioner was Shri Sukumar Sen, who was a thoroughbred executive and an officer of the Indian Civil Service. When he took over as Chief Election Commissioner, he was working as the Chief Secretary of the state of Bengal. So he became the first Chief Election Commissioner, and the day he took over, he had a baptism by fire kind of environment because he was to go for the first general elections in 1951-52, having taken over as Chief Election Commissioner in March 50. So the biggest task for him was developing electoral rolls and making sure that an electorate of 17.5 crores was able to successfully cast their votes and bring about the results of the elections. And the task was very big because not only was he was supposed to be doing the Lok Sabha elections for 489 seats, but together with that, he was also to oversee the state elections in 22 states. So you can well imagine how big the task was. Now, we have had after Mr. Sukumar Sen, we have had 23 more Chief Election Commissioners, and presently Mr. Sushil Kumar is the 24th Chief Election Commissioner. But before we go into how Election Commission works, I would like to give actually 2 instances which will develop the perspective about the creation of the office of the Chief Election Commissioner and the body which is known as the Election Commission of India. When India was to attain independence, much before that, in November 46, the Constituent Assembly had come into existence, which was mandated to develop the constitution for us. A few days before 15th of August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru goes to महात्मा गांधी, और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जवाहरलाल नेहरू जब महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि बापू जल्द ही हम आज़ाद होने वाले हैं और हमारे संविधान का निर्माण होना है, मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि हमें उस समय के मशहूर जो एक बहुत बड़े संविधानविद थे उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बापू हमें सर आइवर जेनिंग्स की सर्विसेज लेनी चाहिए, जो ब्रिटेन के एक विख्यात संविधानविद थे। और आप जानते हैं बापू ने क्या कहा? बापू ने हंसते हुए कहा,
हम ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकाल रहे हैं और तुम एक ब्रिटिशर को यहाँ लाना चाहते हो, गो एंड गिव दिस टास्क टू अंबेडकर। एंड यू नो कितना बड़ा एक मील का पत्थर है कि जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर साहब को न केवल बहुत गरमाइश के साथ आमंत्रित किया, बल्कि हम सब जानते हैं, इतिहास हम सब पढ़ चुके हैं, B.R. अम्बेडकर साहब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के न केवल प्रेसिडेंट बने और उनको इस कारण भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, बल्कि वो आज़ाद भारत में लॉ मिनिस्टर भी बने। तो इस तरह से अंबेडकर साहब का कंट्रीब्यूशन हमने देखा। लेकिन अंबेडकर साहब का इससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि जब संविधान बनने लगा तो ये प्रश्न उठा कि हमें क्या सभी मतदाताओं को समान मतदान का अधिकार देना है। उस समय भी दो व्यूज बने और कुछ लोगों ने यह कहा कि चूंकि भारत में केवल 16% साक्षरता थी जब हम आज़ाद हुए, तो ये महसूस किया गया कि भारत में कभी भी 15-16% से ज़्यादा लोगों ने मतदान भी नहीं किया था। अगर हम 1935 एक्ट के तहत हुए चुनावों पे गौर करें तो ये सोचते हुए ये दो विचार बन गए। एक तरफ सरदार पटेल को एक थोड़ी सी चिंता थी, चूंकि वो स्थानीय स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का काम कर रहे थे। उनका विचार ये था कि शायद स्टेट्स के अंदर इस सुझाव को बहुत अधिक बल ना मिले, जबकि दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर साहब इस व्यू के थे कि हमें देश की जो पूरी हमारी स्वतंत्रता, ये जो पूरा संग्राम हुआ है, उसके दौरान जो उपजी हुई भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें पहले दिन से ही सभी को समान मताधिकार देना है। और बाद में ये बड़ा हर्ष का विषय है कि तीनों इन बड़े राजनेताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित हुआ और हम विश्व की एक सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में उभरे, जिसने पहले दिन से ही सभी नागरिकों को समान मताधिकार दिया। इस क्रम में थोड़ा सा आपके ध्यान में लाना यह आवश्यक होगा कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जिसे वेस्टमिंस्टर स्टाइल का जनक कहा जाता है, वहां पर 1707 के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम पैदा हुआ, लेकिन समान मताधिकार आया 1928 में जाके, ताकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लगभग 221 वर्ष पश्चात। इसी तरह से अमेरिका में भी हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में आ गया, लेकिन सबको एडल्ट सफरेज जो था, सबके लिए समान मताधिकार, वो जाकर मिल पाया 1965 में, जो भी लगभग 179 सालों के आसपास। सो ये इस कारण हमें बड़ा ही इस चीज में गर्व महसूस करना चाहिए कि हम शुरुआत से ही एक ऐसा लोकतंत्र बने जहां पर हर वर्ग, हर नस्ल, हर उम्र और हर सोशल बैकग्राउंड के व्यक्ति को समान मताधिकार मिला। जहां तक संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329, जिसे कि संविधान का खंड 15 भी कहते हैं, द पार्ट 15 of the Constitution talks about the Election Commission of India, how it is going to function, the power that it wields, or it talks also about the adult suffrage and the laws to be made for the purpose of conduct of election. So, and the moment we find that Mr. Ambedkar got free from drafting the constitution, he took up the job of developing Representation of People's Act 1950 and 1951. As you must be aware, these are the two acts which the former, that is the 1950 Act, talks about the delimitation and allocation of seats and elections to Rajya Sabha, etc. Whereas the 1951 Act, it talks about the conduct of the elections and various offences and the powers that election commission has to execute all its dictates and the mandate that it has. So this way the total setup is we have Article 324 to 329. 324 talks about election commission being in charge of superintendence, direction and control of elections, and you would be keen to know how various elections in India take place. Now, the Election Commission of India is responsible for the parliamentary elections, which is Lok Sabha and Rajya Sabha, and the state assembly elections. In addition to that, they are also responsible for the elections of the president's and the vice president's office. So these four important elections are
the responsibility of the Election Commission of India, and for the rest of the elections, which include the panchayat elections and the local self-government elections, which is the municipal elections in various states. For that, each state has its own election commission and a state election commissioner. So this way the hierarchy works. For the top 4 elections, the Election Commission of India works, and for the rest, the state level election boards take charge of the various elections. Now, in addition to what we have understood, I would like to tell you about 3-4 very important aspects in the history and evolution of Election Commission in India. There have been, so to say, a staggered growth the way Election Commission of India has evolved. So first of all, we can talk about the voter ID cards, which made the process very, very foolproof. They were introduced in 1993. Then we can also talk about the Code of Conduct. Code of Conduct, I think you must all be aware, the moment the elections are declared, the Code of Conduct comes into action, which means that from then on, the incumbent government cannot then announce policies, etc. And this is actually intended to make sure that there is a level playing between all the political parties vis-a-vis the elections, the forthcoming elections. So together with that, another development was the electronic voting machines, the EVMs, which is how we do the casting of vote these days. So they were also introduced in a very, very staggered manner, starting from 82 and then 1982 onwards, and then in 84 the Supreme Court found that the EVMs, they don't have the backing of the Representation of People's Act, and therefore this was suspended for a few years. In 1989 the necessary amendments were made to the Representation of People's Act, and from then on EVMs have been in fashion in a staggered way. And from 2004 parliamentary elections, we find that all the elections at the parliamentary level are being, and at the assembly level also, are taking place by way of EVMs. Another very important development in this journey of Election Commission of India has been VVPAT, which is voter verifiable paper audit trail. Now, it's a very interesting development because there were some sections of the society who would have some suspicion, or some, they would say that maybe the EVMs are not providing with the foolproof or robust system of casting a vote, and it is essential that a voter must know that the vote that he has cast has actually gone to the person or the party or the symbol that he has cast the vote for. So this VVPAT is now being randomly introduced to give more confidence to the voters. And the last in this list of developments is the very high profile, or so to say the flagship project of the Election Commission of India, which is known as SWEEP, which was started in the year 2009. And SWEEP means Systematic Voter Education and Electoral Participation. So the idea was, and there is a very important fact that we must keep in mind, we all fought for 100% adult suffrage, or voting right for everybody. Now, if we fight for voting right for everybody, and in the first election the voting percentage was only 45 or maybe 45.5. Now there were critics who would say that you fight for something and you find that more than half your population doesn't vote. So therefore it became very imperative that Election Commission of India will have to go out of the way to push or persuade people or guide them that their vote is very important for raising a welfare government in this huge democracy that India is. And it is a matter of great pride that we started with a 45.5% voter percentage in the first election, and in the 17th general election of 2019 it has already reached 67. And I'm very sure going forward the way SWEEP is being you see this program, this flagship project of ECI is being promoted by the Election Commission. Very soon I think we'll be in the 70s or maybe 80s also in the coming years in terms of the vote percentage. So this was about how it functions. Now
we can't actually conclude any discussion about Election Commission of India without mentioning the great T.N. Session. Mr. T.N. Session, everybody knows about him, I believe, those who follow the Election Commission's working. He remained a Chief Election Commissioner from 1990 December to December 96. So for 6 years, he was the Chief Election Commissioner. And it was during his time that not only the voter ID cards were introduced and very forcefully distributed amongst the voter, but he also made sure that there were 3-4 signal steps that it took to make the position of the Chief Election Commissioner really effective. And if I could mention a few, I think he was the first to introduce the concept of sending observers from other states to the states where the election is happening to bring about impartiality. In addition to that, he also very strongly recommended the use of paramilitary forces like CISF, etc., or CRPF to help the local police and to make sure that the instances of booth capturing or violence that we have all seen in the 80s, and we find that during Mr. Sessions' tenure, all these incidents, they came down drastically. And I was just listening to an interview by one of the former Chief Election Commissioners recently, and who said that all of us who came after Mr. T.N. Session, we all basked under the glory of the beautiful setup that Mr. T.N. Session could build around Election Commission of India. So there lies the, you see, the contribution of Mr. Session. Now, let me also bring to your notice some very interesting facts about Election Commission of India's growth, evolution, and some anecdotal things also. Now, we have had 24 Chief Election Commissioners till now, but you would be surprised to know that we have had only one female Chief Election Commissioner till now, which was Mrs. V.S. Rama Devi, who became the Chief Election Commissioner only for a few days in the year 1990. And since then, it has been a male bastion, so to say. And the Chief Election Commissioner's office has also been dominated by the Indian Civil Service officers and later by the Indian Administrative Service officers. But there have been 5 exceptions. People who held that office. और ये 5 लोग जो थे, 5 Chief Election Commissioner, ये वो थे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में ना होकर अन्य सेवाओं के थे. And if I take the names of these incumbents, उनके नाम अगर हम लेना चाहें तो SP सेन वर्मा, श्री शकधर, श्री पेरी शास्त्री, मिसेज रमा देवी और हमारे जो वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुशील कुमार, ये भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से संपर्क रखते हैं, बिलोंग करते हैं. So this gives a kind of variety to the people who have held the office of the Chief Election Commissioner. Now, other than this, some very interesting incidents happened when the first election took place. So when Mr. Sukumar Sen, as we have already discussed, when he took over as the Chief Election Commissioner, the first job at hand for him was to develop more than 17.5 crore electoral rolls, या जिनको हम नामावलियां कहते हैं. And since these electoral rolls were to be developed, the volunteers or the staff of the Chief Election Commissioner's office or the other respective district offices, they were sent to the hinterland of India. और आप देखिए कितना रोचक, और ये चीज़ मैंने गौर की जब मैंने एक बहुत ही प्रख्यात हमारे हिस्टोरियन है श्री रामचंद्र गुहा, उनकी मैं एक किताब पढ़ रहा था. उसमें वो मेंशन करते हैं कि जब सबसे पहली बार नामावलियां बनाने का काम किया गया और स्टाफ के लोग जब दूर दराज गांवों में जाने लगे, तो खास तौर पे उत्तर भारत में ये कठिनाई ज़्यादा थी कि महिलाएं शर्म के मारे या असमंजस के मारे, संकोच के मारे अपना नाम नहीं बताती थी. और जब उनसे पूछा जाए तो अपना नाम बताएंगी, रामू की माँ या नारायण की पत्नी, और ये चीज़ इसी तरह से रिकॉर्ड हो गई और काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस तरह से नाम दिए. और जब ये चीज़ श्री सेन कुमार के ध्यान में लाई गई तो निश्चित तौर पे ये स्वीकार्य नहीं थी. और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 28 लाख नाम इन नामावलियों में से हटाए गए, जिनको आने वाले वर्षों में
ठीक किया गया। इसी तरह अगर हम ध्यान से याद करें तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई या कोई ना कोई ऐसा उलझन की स्थिति पैदा हुई। जैसे 2009 के अंदर, सन 2009 के अंदर मिस्टर एन गोपाल स्वामी ने संविधान में जो जिस तरह से बता रखा है, उस समय के एक इलेक्शन कमिश्नर श्री नवीन चावला के रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन माननीय राष्ट्रपति को भेजी और राष्ट्रपति ने इस रिकमेंडेशन को यह कह के अस्वीकार कर दिया कि ये रिकमेंडेशन मुझे भेजी जा सकती है परंतु उसे स्वीकार करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। और ये बड़ा रोचक लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में श्री नवीन चावला भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और उसके पश्चात वो सेवानिवृत्त हुए। तो इस तरह से बहुत सारी रोचक बातें इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के कार्यकलापों से जुड़ी हुई हैं। एक सबसे जो रोचक चीज है या रोचक तथ्य है वो ये है कि भारत के सबसे पहले वोटर जिन्होंने भारत में इस चुनाव प्रक्रिया का पहला वोट डाला, उनका नाम श्याम सरन नेगी था, जो हिमाचल प्रदेश में आज भी 104 वर्ष की उम्र में निवास करते हैं। किन्नौर जिले में वो एक सेवानिवृत्त अध्यापक है और कितने गर्व की बात है कि उन्होंने पहले आम चुनाव से लेकर इस 17वें आम चुनाव तक हर बार अपना वोट डाला है। और इस बार जब वो वोट डालने गए हैं तो वहां के जो जिलाधीश थे वो स्वयं अपने पूरा स्टाफ लेकर आए और उन्होंने उनका माल्यार्पण करके और हर तरह से मतलब एक बड़ा उद्गार अपना प्रस्तुत किया कि ये हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी क्रम में अगर आपको कुछ रोचक बात और बताना चाहूं, आमतौर पर हम बोलते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता जिसको चुनना चाहती है चुनती है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि माननीय अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कहलाते हैं और जिनका सबसे अधिक योगदान हमारे संविधान को और संविधान को बनाने के क्रम में इस इलेक्शन की प्रक्रिया को इस तरह से मूर्त रूप देने में है, जब वो स्वयं पहले इलेक्शन में खड़े हुए तो जीत ना पाए। और 1951 में जो इलेक्शन हुआ उसमें ना केवल मिस्टर अंबेडकर बल्कि श्री जेपी कृपलानी जो कि बहुत बड़े उस समय के राजनेता थे, दोनों चुनाव हार गए। और यही नहीं, 1954 में श्री अंबेडकर ने जब फिर एक उपचुनाव लड़ने की कोशिश की, भंडारा से उपचुनाव लड़े, वहां पर भी ना जीत पाए। सो कहने का आशय यह है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। बड़े बड़े महारथी भी कई बारी चुनाव नहीं जीत पाते हैं और कुछ नए नए जो कौंपलें आती हैं उनको भी बड़ा लोग जो है बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है। अब जो अंतिम एक चीज आती है जिसको लेकर कुछ तरह के बयान दोनों तरफ से आते हैं, वो है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता। हम सब जानते हैं कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन इज द मैंडेट गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और किसी भी संस्था के लिए अगर इतना बड़ा काम करना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे कार्य करने की स्वतंत्रता हो, उसके कार्य में अनावश्यक कोई दखल ना दे। और इस स्वतंत्रता को, हालांकि आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ये स्पष्टता लिखा हुआ है कि जो वहां का इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल स्वतंत्र होगा। हमारे केस में, इंडिया के केस में, हालांकि ये साफ तौर पर नहीं लिखा गया है, बल्कि जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं उसमें उनकी स्वतंत्रता को काफी हद तक सुनिश्चित किया गया है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर 65 साल की उम्र तक या 6 वर्ष जो भी पहले हो, ये उसका टेन्योर को लेकर कंडीशन है। उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो उनके ऑफिस में आने के बाद बदली नहीं जा सकती। उनके जो एमोलूमेंट्स हैं यानी कि उनकी तनख्वाह जो है उसको रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समकक्ष। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा प्रावधान जो उनको स्वतंत्रता देने में काफी बल प्रदान करता है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटाने की प्रक्रिया को उसी तरह से फॉलो किया जाना है जैसे किसी सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने या इंपीचमेंट की जो हमारी व्यवस्था होती है। सो इससे ये प्रतीत होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद को काफी हद तक बल प्रदान किया गया है और उसको बहुत एक स्वतंत्र तरीके से मूव करने का
एक पूरा वातावरण बनाया गया है। एक कोर्ट के स्तर पे भी, बड़ी बड़ी कोर्टों के स्तर पे जहां हम देखते हैं इलेक्शन पिटीशंस चुनावों को लेकर कई बार दायर होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कन्वेंशन कह लीजिए या ये कह लीजिए कि एक मान्यता बन गई है कि एक बारी जब चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से कोर्ट्स दखल नहीं देती हैं। इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद ही हम कोई भी अगर ऐसा कोई मतदाता या कोई कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से न्यायालयों को जाकर पिटीशन के माध्यम से गुहार लगा सकता है। सो इससे भी उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। हालांकि कुछ वर्ग और मेरा भी किसी सीमा तक ऐसा सोचना है कि हमें एक काम जरूर करना चाहिए। आज वर्तमान के समय में अगर आप अच्छी तरह फॉलो करते हो तो आप देखते हैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो चार्ज होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो वोटेड होते हैं। सो चार्ज का मतलब ये होता है कुछ ऐसे व्यय जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सैलरीज या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज हैं, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाती है। मतलब उनको वोट नहीं करना पड़ता पारित करने के लिए। जबकि और इसी श्रृंखला में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर हो जाए तो संभवतः और अधिक उनकी स्वतंत्रता को बल मिलेगा। इसके अलावा उनके चयन को लेकर भी अगर एक सुव्यवस्थित कोई व्यवस्था बन जाए तो उससे जनता के मन में और अधिक इस बारे में महसूस किया जाएगा कि यह संस्था एक बहुत स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने इस पूरे वीडियो में ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत जैसे एक लोकतंत्र को पिछले 70 साल से किस तरह से उनकी सारी चुनावी प्रक्रियाओं में कितने सुंदर तरीके से लोकतंत्र को बल प्रदान करने में लगी हुई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आइवर जेनिंग्स, जिनके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, और जब बापू ने पंडित नेहरू से कहा कि नहीं, हमें बाहर के किसी संविधानविद को नहीं लाना है, वो भारत के संविधान बनने के बाद उसके सबसे बड़े जिसे कहें क्रिटिक बन गए। और उन्होंने करीब मिड 50s के अंदर एक दो सेमिनार्स में ये कहा कि भारत का संविधान बहुत जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा, बहुत लेंदी, अनविल्डी है और ये शायद बहुत अधिक चल नहीं पाएगा। लेकिन कितने गर्व का विषय है कि हमारा संविधान 70 साल से भी अधिक सालों से लगातार आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। उसने सारी प्रक्रियाएं, जितने भी प्रावधान हैं, सिवाय 1975 में जब भारत में आपातकाल लगा, उस समय के 1-2 सालों को छोड़ दें जिसमें कुछ अंधेरा छा गया था, उसके अतिरिक्त संविधान बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। और सर आइवर जेनिंग्स का जो भय था वो संभवतः सही नहीं था। और उनके संबंध में एक चीज मैं और बता दूं कि आइवर जेनिंग्स को श्रीलंका ने, जिसको उस समय सीलोन कहा जाता था, 1960 में जब उनका एक संविधान बनना था तो श्री जेनिंग की सलाह पर ही बना। पर देखिए कि क्या कितनी आयरोनिकल सिचुएशन है कि वो संविधान 5-6 साल से अधिक नहीं चल पाया। सो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे वीडियो में आम तौर पे जो चीज एकदम साफ तौर पे निकल के आती है कि हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है और जो हमारा चुनाव आयोग है, ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। आज भी हमारी जो चुनाव आयोग की सेवाएं बहुत से अफ्रीकन और एशियन जो नेशंस हैं वो लेते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि पिछले 70 साल में इन्होंने बहुत जबरदस्त गुडविल या नाम कमाया है। और इसी के बल पे आने वाले सालों में भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र बनके और आगे बढ़ेगा। जहां हम पहले चुनाव में जो 1951-52 में हुआ, वहां वोटर बेस केवल 17.5 करोड़ था। पिछले चुनाव में 91 करोड़ लोगों ने मतदान किया। तो आप सोचिए कि मतदान 17.5 करोड़ का होना था, उसकी तुलना में अब 91 करोड़ लोग होते हैं, 5 गुने से भी ज्यादा। और उस समय वोट परसेंटेज
66.5 थी, आज 67 है, 1.5 गुना। तो सोचिए कितनी बड़ी यात्रा इस संस्थान ने की है और आने वाले सालों में भी करेगी। इसी तरह के बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हम समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। हमारा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हम आपको जिस विषय के बारे में बताएं उसके बारे में आपको काफ़ी विस्तृत रूप से हर चीज़ के बारे में पता लग जाए। और आने वाले समय में हमेशा मेरा प्रयास ये रहेगा और हमारे इस चैनल का प्रयास भी ये रहेगा कि हम आपके दृष्टिकोण को परीक्षित या इम्प्रूव या रिफाइन करने की कोशिश करें। जो ही हमारा दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव रिफाइन होता है, उसी से हमारा जो ओपिनियन है वो और अधिक हेल्दी और बैलेंस्ड बनता है। और हम जब किसी भी परिवेश में उठते बैठते हैं, पता लगता है कि हम एक बहुत ही जागरूक भारतीय नागरिक हैं। तो ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। कृपया इस चैनल को आप सहयोग देते रहें और आने वाले सप्ताहों में हम एक के बाद एक नए नए विषयों पर आपको इंफॉर्मेशन जो बड़ी डीपली रिसर्च होगी वो देते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक ऐसा शानदार एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें हर एक नागरिक पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड है और बड़े अच्छे प्रकार से एक नागरिक का व्यवहार दिखाता है। धन्यवाद, नमस्कार।